one of the most important thing, marketing is so difficult. One of the most difficult things that you may make the best product, but nobody buys it. You see, you spend so much time, you go to the market, suddenly the market is not even looking at it. You have seen Allper, it's red color and all that. It took 10 years almost, Allper, to become profitable. It was always in negative. There was one milk, the carton came in green. Who wants to buy green milk? It's yucky, the green milk. But they must have done a lot of market research to come up with a green box, and it was totally rejected by the market. So these are the things that you want to. Qatar has spent billions of dollars for developing LNG plants, but there was a time nobody was buying it. So it's okay, for somebody creates a small mithai or something, but when you spend billions of dollars and there are no buyers, then definitely the losses starts occurring. So whether it is hydropower plants, if there is, by marketing, it doesn't mean that it has to go to the shops all the time, but by marketing it means that it is sellable. So there is a big demand. Pakistan is energy hungry, yet there is no buyer for electricity of PEDO. There are hundreds and hundreds and thousands of sites available in KP, Chitral, in this area for hydropower plants, and KP wants to sell it, but lacks buyers, because again, how to sell it? That's the point. We, in oil and gas, alhamdulillah, situation has not arisen, but it may arise in the future. When these companies will get split, SNGPL will get split, that day you people were there, and they were trying to reduce the profitability of gas companies from today. So the profitability of gas companies goes down, the investors go out. The investors are looking for high profit. And if you tell them that previously their profit was 17%, now it is going to be 11%, so I think more than 50% will run away. So this is the counter strategic planning that we need to do. That what will happen if the federal government really reduces the rate of return on SNGPL and splits into provinces, then what will happen to us? How will we survive? How will we attract investors? It's not necessarily by marketing, we not only mean just the simple selling of the product, marketing of the company also. How would KPOGCL market itself in the international market to get investors? So that's another kind of marketing. आपकी जो फ्रेमवर्क है आपका, तो we have discussed कि आपके कुछ मिशंस होने चाहिए, आपके कुछ एक think tank होना चाहिए डिपार्टमेंट में. Unfortunately, फेडरल गवर्नमेंट में और प्रोफेशनल गवर्नमेंट से भी think tank नहीं है. और जब तक think tank अगर हो तो वो फिर सोचता रहता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है. Company में भी one person cannot think all the time. So there has to be a cell at least. 3-4 बंदों का एक cell होना चाहिए जो एक फ्यूचर को बार-बार उसको एनालिसिस करे कि अच्छा यहाँ हो गया तो क्या होगा, ये होगा तो क्या होगा, तो ये एक यूनिट होना चाहिए, बेसिक यूनिट होना चाहिए हर कंपनी में. जब आप जाएंगे PSO जिसे जहाँ भी जाएंगे उनसे पूछें कि जी आपके पास आप समझ लीजिए वी वांट टू मीट योर जनरल मैनेजर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. बास कंपनीज में तो चीफ स्ट्रेटेजिक प्लानर होता है, जिस तरह चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, चीफ टेक्निकल ऑफिसर होता है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होता है, इसी तरह उनका चीफ स्ट्रेटेजिक मैनेजर या ऑफिसर होता है उनका. तो ये आप जरूर सवाल कीजिएगा कि जी आपका कौन है, उसकी क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस है, वो क्या करता है, क्या प्रोड्यूस किया उसने अभी तक, जो भी आप केस स्टडी करेंगे. अच्छा, और मतलब उसके फिर क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस है कि वो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज देखता है, रिस्क देखता है. मैंने आपको कहा था कि अभी जो स्ट्रेटेजिक प्लान में सबसे बड़ा जो
आंसर है वो सस्टेनेबिलिटी का है. बिग कंपनीज लाइक प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रिकेट एंड कोलमैन, नेस्ले टाइप, और एक और मैंने आपको बताया था जो वो सारी की सारी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए चक्कर में कि सर्वाइव कर जाए ये 3-4 साल. उसके पीछे कई आंसर है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि द होल दुनिया में जो इन्वेस्टर्स हैं दे आर वेरी 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 डिस्टर्ब्ड. ट्रम्प के आने की वजह से कुछ फैसले ऐसे हो रहे हैं जो एक रैशनल बिजनेसमैन ये चाहता है कि यार मेरा पैसा सेफ हो. आज मतलब एक फैसला हो तो कल दूसरा फैसला, तीसरा, एक फैसला ऐसे ऐसे ना हो इरेटिक, तो उससे एक अभाम क्रिएट होता है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर्स क्रिएट होते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं. ऑयल की प्राइसेस ऊपर नीचे जाना, गोल्ड की प्राइसेस ऊपर नीचे जाना शुरू हो जाती है. तो पीपल वांट के कंटिन्यूटी और एक प्रोसेस. जो बिजनेसमैन होते हैं, हम शायद वी हैव नथिंग टू स्टेक, हमारी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, हम कहते हैं आज उधर जलसा जुलूस हो जाए, उधर तोड़ फोड़ हो जाए, डजंट मैटर हमें. लेकिन वो जो इन्वेस्टर होते हैं वो कहते हैं ओह माय गॉड वहाँ पर फाटा में एक डज हो गई है, पाकिस्तान तो आउट. मिस्र में आज एक बम फट गया मस्जिद में, प्रिंस अरेस्ट हो गया सऊदी में, आउट. अमेरिका में ट्रम्प इज मेकिंग दीज डिसीजंस लेफ्ट राइट, आउट. वो कहते हैं जाए तो कहाँ जाए, पैसा फिर जेब में रखने लगते हैं, वो फिर उसको गोल्ड में कन्वर्ट करते हैं, गोल्ड में कन्वर्ट करके वो फिर अपने तजूरे में भरना शुरू करते हैं. दैट इज नेगेटिव, बिकॉज जब पैसा रोल कर रहा होता है इकोनॉमी ग्रोज, एंड व्हेन मनी गोज इनटू सेफ डिपॉजिट बॉक्स ऑफ द बैंक, तो वो रोलिंग खत्म हो जाती है. तो दैट तो इसलिए nobody wants abham, nobody wants erratic decisions of the governments, of the corporate sector, of the United Nations. तो people want, especially investors, दुनिया में एक जो बिजनेस चल रहा है वो इन्वेस्टर्स की वजह से चल रहा होता है प्राइमरीली. उसके बाद सेकेंडरी आते हैं जो उसको ऑपरेट कर रहे होते हैं. सर ये इंटरेस्ट को इसलिए डिस्करेज किया गया है कि इसमें जो इकोनॉमी है वो रोल नहीं होती ना, वो एक जगह पर. जी बिल्कुल एग्जैक्टली. नेक्स्ट, ये तो फ्रेमवर्क के बारे में बताया गया कि फ्रेमवर्क होना चाहिए, बिजनेस एनालिसिस होना चाहिए. नेक्स्ट, उसके बाद मार्केटिंग प्लानिंग के जो प्रोसेसेस हैं, क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए, इंफॉर्मेशन है, एनवायरनमेंट है, जिस पे कि आपकी ये स्वॉट एनालिसिस टाइप आप करते हैं, प्लानिंग होनी चाहिए वगैरह, फंड्स होने चाहिए, फीडबैक आपको आनी चाहिए. नेक्स्ट, जो आपकी मतलब एक आप ऑयल एंड गैस निकाल रहे हैं, अगर आप ऑयल एंड गैस बहुत सा निकाल दें और कहें कि जी पेट्रोल आज से 1000 रुपये लीटर होगा, लोग बोलेंगे यार ये जबरदस्त कार दे कर दे, क्या होगा, मतलब नोबडी विल गिव यू एनी क्रेडिट. आप बोलेंगे जी अभी तो आप देंगे 77 रुपीज़ लेकर, मैं उसको 57 पे ला रहा हूँ. फिर बोले से हाँ यार वाकई ये कुछ किया है KPOGCL ने. अगर KPOGCL अगर बता दे कि जी मैं तो इतना तेल और गैस निकालूंगा कि जो आप पहले एक टैंकी पूरा भरते थे अभी आपको 1 लीटर मिला करेगा उसी प्राइस पे, लेकिन तेल बहुत है, तो दैट इज नॉट दी. तो ये आपकी जो ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटजी में भी प्राइसिंग प्लेज अ मेजर रोल. सर अगर इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की प्राइस ज़्यादा होती है या कम होती है तो KPOGCL पे उस पर क्या फर्क पड़ेगा, मतलब वो खुश होगा या ना खुश होगा KPOGCL? जवाब दें. हम खुश नहीं होते, हम कहते हैं प्राइस तो. सर वो कंपनी की नेचर पे डिपेंड करता है, और जब मार्केटिंग जो कंपनीज है वो कहते हैं कि कम हो, और ड्रिलिंग जो कंपनी है वो एक्सप्लोरेशन जो कंपनी है वो कहते हैं कि ज्यादा हो. हम तो कहेंगे जी प्राइस अभी तो $62 है ना, हम तो कहते हैं ये $300 हो जाए हमें ज्यादा प्रॉफिट मिल रहे. ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है वो कह रहे हैं कम से कम. हाँ वो कहते हैं कम से कम हो, डील करते हैं, उनको कमीशन मिल रहा होता है ना हर लीटर पे, जितना लीटर ज्यादा बिकेंगे उतना उनको कमीशन मिलेगा और हमें ओवरऑल प्राइस ही मिलता है. तो हमारी ये है कि प्राइस ज्यादा से ज्यादा हो. सर वो रिफाइनरी जो बीच में है सर, तो वो उस पर क्या फर्क पड़ता है, अप से फर्क पड़ता है या डाउन? वो भी डाउन से करता है. क्यों? वो तो खरीदती है, कम प्राइस पे खरीदेगी और अपना कमीशन करके वो बेचेगी, वो भी एक कमीशन पे काम कर रही होती है, जिसको ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन कहते हैं. नहीं, तो कमीशन देखे ना, एक मार्केट कैन अब्सॉर्ब, फर्स्ट करके मार्केट जो है तो वो एक चीज़ खरीदने के लिए, टमाटर खरीदने के लिए उसके पास जो जेब में पैसे 50 रुपये ज़्यादा नहीं है, तो अगर आप उसको 55 में बेचेंगे तो कोई नहीं खरीदेगा. अगर आप फार्मर उसको 48 में बेचेगा तो कमीशन तो 2 रुपये होगा.
फार्मर अगर 40 में बेचेगा तो 10 रुपए कमीशन होगा। तो जो आगे वाला होता है ना, जो पीछे से चीज आ रही है, वो कहते हैं मुझे कम से कम प्राइस पे दो, कम से कम, ताकि मैं आगे ज्यादा प्राइस पे बेचूं। तो वो हर एक की ये ख्वाहिश होती है कि आई वांट टू सेल इट एट अ हायर प्राइस बट गिव मी एट अ लोअर प्राइस। खरीद में सब बहुत ही स्क्वीज करते हैं, यार तबाशू ये हो गया, बर्बाद हो गया हम, लेकिन जब बेचने आते हैं तो फिर कहते हैं कि जी इकोनॉमी तो इतनी अच्छी हो गई है और ये आपका तो बड़ा पैसा है, मैंने चेक किया हुआ है, ये इस तरह की बात होती है। सर आपके ऑर्गेनाइजेशन में सर वो मतलब तेल वगैरह वो स्टोर कर सकते हैं, तो आपके लिए मार्केटिंग कोई फिर से करती है ये मतलब कुछ बेचेगा या? फिलहाल नहीं है, फिलहाल तो पाकिस्तान इज सिविली डेफिसिट कंट्री और अभी एवरीथिंग इज इन द हैंड्स ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। तो फेडरल गवर्नमेंट खुद ही खरीद रही, खुद ही बेच रही होती है और इंपोर्ट्स आ रहे हैं। तो ये एक जरूर थ्रेट है विद एलएनजी। विद एलएनजी कमिंग इन, गवर्नमेंट ने ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को बिल्कुल रोक दिया है कि फॉर द लास्ट 5 ईयर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन बिल्कुल स्टॉप हो गई। उससे क्या नुकसान होता है कि जो लोग यहाँ पाकिस्तान में काम कर रहे थे वो कहते हैं यार ये तो अब बिजनेस चलता नहीं है, पाकिस्तान छोड़ के चले गए, ठीक है ना। दूसरी जो स्किल सेट होता है वो एक गैप आ गया 5 साल का। जिस बंदे ने जूनियर इंजीनियर या जूनियर जियोलॉजिस्ट एंटर होके उसने अभी बनना था, चीफ बनना था या असिस्टेंट मैनेजर बनना था, वो तो पिछले 5 साल कुछ नहीं हुआ। तो अभी अगर हम स्टार्ट करते हैं, KPOGCL ने एक ब्लॉक स्टार्ट किया है, तो हम कहते हैं जी लोग किधर हैं जो फील्ड में जूनियर लोग, अब सब बड़े एजेड हो गए, दे डोंट वांट टू गो टू द फील्ड, वो फील्ड नहीं जाना चाहते। हम यंगस्टर्स ढूंढे, कोई यंगस्टर ही नहीं, क्योंकि वो गैप आ गया। वरना जब जैसे जैसे ये प्रोसेस चलता रहता है तो नए लोग इंडक्ट हो रहे होते हैं और वो ऐसे 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 बढ़ जाते हैं, नीचे और इंडक्ट हो जाते हैं। तो वो एक सक्सेशन प्लान चल रहा था, लेकिन पिछले 5 साल से गवर्नमेंट ने उसको रोक लिया बिकॉज ऑफ LNG। दे वांटेड टू इंपोर्ट मोर एंड मोर LNG ताकि लोकल गैस और ऑयल ना निकले। तो उससे ये नुकसान हुआ कि बीच में एक स्किल सेट का गैप आ गया, ठीक है। और दूसरी तरफ मतलब लोगों में काम करने का भी ह्यूमन रिसोर्स खत्म हो गई है और जो बीच में सर्विसेज थी, जो पीपल हु आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, वो भी चले गए, रिग्स भी चले गए। क्योंकि यू सी यू कैन नॉट पुट द रिग हियर फॉर 5 years एंड डू नॉट वर्क। वो कहते हैं लेट्स गो टू दुबई, लेट्स गो टू ओमान, कतर, यमन चले गए वो लोग कि वहाँ पर बिजनेस चल रहा था। बट यहाँ पर चूंकि थिंक गॉड, अगर आप एक अगर दुकान है उसमें आलू बिकते हैं, टमाटर, और सारी खवातीन ये डिसाइड कर दें कि अब हम कोई टमाटर नहीं डालेंगे, वो दुकान तो बंद कर देगा, उसकी जगह वो कुछ और जूते ले आएगा, सिगरेट ले आएगा, कुछ और ले आएगा ना। तो फिर कल के दिन जब खवातीन कहती हैं हाँ आज हम टमाटर डालेंगे कटवाई में, तो देखा टमाटर वाले कोई नहीं। सेम थिंग हैज हैपेंड इन पाकिस्तान वेयर वी आर लुकिंग फॉर ऑयल एंड गैस पीपल, दे हैव गॉन अवे, क्योंकि एक 5 year का गैप आ गया। और ये इस तरह का गैप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हाइड्रो में भी आया है। हाइड्रो में तरबेला बना था, मंगला बना था, उसके बाद देयर वाज अ बिग गैप। तो कोई इंजीनियर्स नहीं डेवलप हो गए हाइड्रो के। देयर आर नो इंजीनियर्स who know the hydrology, who know the strata, the foundation, किस तरह करेंगे। तरबेला के बाद मंगला, उसके बाद दासू, भाषा, ये आते रहते हैं ना, नीलम, जेलम वगैरह, एक एक। तो फिर आहिस्ते आहिस्ते वो स्किल सेट होता, लोग बिजनेसेस भी होते, डिजाइनिंग भी होती और काम करने वाले प्रोजेक्ट मैनेजर भी होते। अभी कोई प्रोजेक्ट मैनेजर ही कोई नहीं पाकिस्तान में जो कैन मैनेज प्रोजेक्ट्स एट पीडो। इधर से कोई सोलर का था, उसको हर्डल में लगा दिया, जो उधर वो मतलब कुछ और चलाता था उसको इधर ले आया, कुछ अमेरिका में कोई बंदा काम करता था उसको बस अभी गुजारा करो। तो पीडो हैज दिस सीरियस प्रॉब्लम ऑफ नॉट हैविंग मैनेजर्स, ठीक है ना, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मतलब हु कैन डिलीवर। ये तो सुबह आए शाम, सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी में तमाम होती है, इस तरह तो बहुत से डिपार्टमेंट्स, लेकिन जो उस प्रोजेक्ट को लेकर चलने वाले हु कैन नेगोशिएट। मुझे फेडरल गवर्नमेंट वो कहते हैं यार आपके पीडो से पीपल कैन नॉट नेगोशिएट विद अस। आते हैं 2 मिनट में वो बस ढह जाते हैं, उनके पास बिकॉज उनके पास वो नेगोशिएशन स्किल्स नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, वो बैकग्राउंड ही नहीं है, जिससे अगर होता ना तो वो दे वुड हैव, मतलब अगर साल में अगर 6 दफा नेपरा जा रहे होते कि जी ये प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट ये प्रोजेक्ट, तो इंसान आदी हो जाता है ना लॉज रेगुलेशन से और एक आर्गुमेंट्स फाइट करने के लिए। अभी तो चूंकि वो एक कुछ नहीं हुआ फॉर द लास्ट 35 years, सडनली देयर इज अ बिग गैप। मलगंज के बाद कुछ भी नहीं हुआ, प्योर स्मॉल थिंग, कुछ भी नहीं हुआ।
اس کے بعد there was no people to negotiate finances. ADB بھی کہتا ہے they cannot negotiate with us. تو یہ ایک اکانومی میں سب سے بڑا نیگیٹو ہوتا ہے when سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے. اور یہ سلسلہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ 11 مہینے کوئی طے نہیں ادھر ادھر کہ ADB کے ساتھ بات کریں ابھی 1 مہینے میں نے سب سارا کچھ کر دیا ہو گیا. اچھا لون تقریباً کچھ دنوں میں پیسے بھی آ جائیں گے. اچھا سائن ہو گیا لون. جی سر. اچھا چلو. تو اس میں دیز آر دی گولز کیا ہونے چاہیے وغیرہ. نیکسٹ آپ کیسے مارکیٹ کرتے ہیں. وی وینٹ ٹو ایڈیپیک ابو دھابی گئے, وہاں لوگوں کو بتایا کہ واٹ از KPOGCL. تو ویب سائٹ لوگ دیکھتے ہیں, آپ ہم پوگی جا رہے ہیں, وی آر گوئنگ ٹو پوگی, یہ پاکستان آئل اینڈ گیس اینڈ انرجی ایگزیبیشن ہے لاہور میں. تو ویل ٹرائی ٹو ارینج سم تھنگ فار یو پیپل. مئی 2018 میں. تو وہ از گڈ ٹو سی اینڈ میٹ پیپل جو کہ آئل اینڈ گیس سیکٹر میں اور انرجی سیکٹر میں کام کر رہے ہیں. سولر والے بھی, چائنیز بھی آ رہے ہوتے ہیں, اور بہت اچھی ایگزیبیشن ہوتی ہے لاہور میں. تو دیٹ وی ول اسٹارٹ پلاننگ فرام ناؤ آن ورڈ, تو تاکہ آپ لوگ بھی تیار ہو جائیں اس کے لیے. تو دیز آر دا ویز ٹو مارکیٹ یور سیلف ان دا مارکیٹ. نیکسٹ. تو 4:15 ہو گیا, پیپل آلسو ہیو ٹو گو. تو آپ یہ لیکچر دیکھ لیجیے گا. اور بات ہو رہی تھی کہ مارکیٹنگ اسٹریٹجی, یہ تو ہو گیا نا, یہ آپ نے پڑھ لینا ہے. مٹیریل بہت زیادہ ہے, ٹھیک ہے نا, ای میلز آ رہی ہیں یہ, اور ایک میں نے ای میل بھیجی تھی وہ تو بہت ہی ہیوی تھی. یو ڈونٹ ہیو ٹو, دیر از اے بگ ڈفرنس بٹوین اسٹڈی اینڈ ریڈنگ. یو آر ہیئر ٹو ریڈ ناٹ اسٹڈی. اسٹڈی وہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک چیز کو مطلب یاد کر کے گھوٹا لگا کر آپ نے وہ پاس. نو نو نو, یور اگر آپ کو اٹس بیٹر ٹو ریڈ 1000 pages دین ٹو اسٹڈی 200 pages. آپ نے یاد, آپ کو اس کی جسٹ اس کی روح آپ کو یاد ہونی چاہیے, اس کی اسٹیٹمنٹ آف دا پرابلم اور کچھ سولوشن آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے. ڈونٹ وری آف دا فارمولا کہ A+B² is equal to what. You are not here to study that. You are here to manage things. Where آپ نے اس جیسا کہ پیٹرولیم پالیسی ہے, آپ کھول کے بس اس کو بس دیکھتے چلے جائیں, پڑھتے امپورٹنٹ چیزوں کو پڑھتے چلے جائیں. نو نیڈ ٹو اسٹڈی اٹ. ٹھیک ہے نا. اسٹڈی کا مطلب کہ آپ بار بار پڑھ رہے ہیں اس کو, بار بار اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں. وہ آپ کے خود دماغ میں جو فرسٹ آپ عادی ہو جائیں گے, جب آپ ریڈ کریں گے تو خود بخود دماغ میں آ جائے گا. آج اگر آپ نے 100 pages پڑھے اور آپ کے دماغ میں 2 pages رہ گئے, کل 4 ٹھہر جائیں گے. اس کی آپ کی اس کی روح ہے, اگر آپ کو 2 فلسفے یاد رہیں گے تو کل آپ کو 4 یاد رہ جائیں گے. سو ان دس کلاس ایٹ دس ڈگری یو آر ناٹ سپوز ٹو اسٹڈی جو ایک ٹپکل آپ انجینئرنگ میں یاد رکھتی ہے نا کہ یہ فارمولے کیا ہے, کرچف کیا ہے, اور تھرموڈائنمکس کیا ہے, اور نیوٹن نے کہا وہ forget about that. نیوٹن کا آپ کو جس یاد ہے نا کہ اینی تھنگ دیٹ گوز اپ کمز ڈاؤن, بس بات ختم ہو گئی. اس کی ساری تھیوری شوری آپ چھوڑیں, فارمولیز وغیرہ آپ رہنے دیں. ٹھیک ہے نا. سواٹ انالیسس کے فارمولے نہیں چاہیے, سواٹ انالیسس کی تھیم چاہیے کہ کوئی اور آپ کو سواٹ انالیسس کر کے دے گا, آپ ایک نظر میں دیکھیں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. تو یور ٹائم by me sending you all that information is that first of all you don't have to read all of them, اور ٹائم میں دوسری کلاسز بھی ہے اور زندگی بھی ہے, لیکن آپ نے اس کو بس ایک نظر دوڑا دینا ہے, اور اس کی آپ نے اس روح دیکھ لینی کیا ہے. اور یہ پریزنٹیشنز بھی از اے میسو وہ ہے, بٹ دیٹس کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ زیادہ تر دیکھیں کہ یہ ہارورڈ, واٹن, کارنیل, اسٹینفورڈ, لنڈن اسکول آف اکنامکس ہے, AIT ہے, وہ کیا کرتے ہیں, وہ کیسے اپنے آپ کو وہ کیسے اسٹریٹجک پرابلمس حل کر رہے ہیں, اور ڈفرینٹ کمپنیز کیسے حل کر رہے ہیں.